to all of you, and this is the discussion of the first editorial of the Indian Express, February 8, for growth's sake. Let's see what we have in the reading part. Here. On Friday, the RBI's Monetary Policy Committee cut interest rates by 25 basis points. अब अगर तुम्हें याद हो तो हमने कुछ दिन पहले हमने डिस्कस किया था जब ये पूरा बजट और ये चल रहा था कि the RBI last met for the monetary policy committee last met in December, and now it is met in February. That means every 2 months there is a monetary policy committee discussion there, right? तो रिव्यू आता है उसका और फिर वो चेंजेस करते हैं. यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, they have cut the interest rates by 25 basis points, मतलब 0.25, joining the list of central banks across the world who have moved to ease the rates. That means, according to what the global banks are doing, banks around the world are doing, the RBI has also taken a similar step. The benchmark repo rate stands at 6.25%. ये benchmark है. Decision of the committee. This was the first time the MPC had met under the new RBI governor Sanjay Malhotra was unanimous. अब देखो, ये मैंने तुम्हें बताया है कि ये जब डैश होती हैं तो दो डैश के बीच में जो होता है ना सेंटेंस, पार्ट ऑफ द सेंटेंस, दैट इज ओनली एडिशनल about the previously occurring idea. Now, when you say the decision of the committee, so now this part is telling you something about the committee. And what was that thing? That it was for the first time that the new RBI governor Sanjay Malhotra was presiding over it, and then the decision was unanimous. एक मत होना सबका. Alongside, the committee voted to continue with the neutral policy stance. The MPC's decision to adopt a less restrictive policy clearly indicates that growth considerations now outweigh concerns over inflation. तो चिंता हो इन्फ्लेशन की कि इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है, उससे ज्यादा चिंता इन्हें ग्रोथ की करनी है. तो ग्रोथ कैसे चाहिए? जब पैसा मार्केट में होगा, लिक्विडिटी होगी, तो ही तो ट्रांजैक्शंस हो पाएंगे. ठीक है, इसके लिए उन्होंने क्या किया है? दे हैव कट द इंटरेस्ट रेट्स बाय 25 basis points. The momentum in the economy dipped sharply in the second quarter with GDP growth coming in at 5.4%. It dipped sharply means it declined. उसे प्लंज भी बोल सकते हैं, डिक्लाइन भी कर सकते हैं, लेकिन एकदम शार्प डिक्लाइन था. तो इस क्वार्टर में कितना हुआ? जीडीपी में 5.4% ग्रोथ दिखाया गया, right? So what is being said here is only what the MPC has decided, what its decision was. It was unanimous, and what it is doing, and then the consequences of it. आगे क्या होगा, कैसे होगा मार्केट में, वो समझाएंगे. So the first advanced estimates have pegged growth at 6.4% for the full year. However, the pickup in the second half of the year does not seem to be robust. The RBI has noted early corporate results for quarter three indicate a mild recovery in the manufacturing sector. Greater clarity will emerge in the coming weeks and months. ठीक है, तो उन्होंने बोला कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्वार्टर थ्री में थोड़ा थोड़ा सा ग्रोथ हो सकता है, लेकिन बाकी चीजें क्लियरली कब हमें पता चलेंगी? आने वाले दिनों में, क्योंकि we'll see how and where the manufacturing sector is leading. So the central bank now expects the economy to grow at 6.7% in 25-26. इन्होंने 6.4% पे एस्टिमेट किया है. पेग्ड का मतलब होता है फिक्स कर देना. ठीक है, अब क्योंकि क्वार्टर थ्री में थोड़ा सा बेटर होने के चांसेस हैं, तो 6.7% तक ये जा सकते हैं 25-26 में. This is at the higher end of the economic service projections, which had pegged growth to range between 6.3 and 6.8. अभी मैंने यहाँ पे डेटा जो है इसे सर्कल किया है, but usually what I say is do not focus on the data, rather come up with the words. तो हमारे पास ये रहे words, देखो. It expects the economy to grow and this is at the higher end. तो higher end पे कैसा, मतलब जो भी रेंज होगा. अब ये 6.3 to 6.8 हो तो कोई फर्क नहीं है. अगर इसके बदले 5.1 से 5.7 होता तो 5.6 would have been towards the higher range.
So the point what I am stating is, it is not about the number. It is about the understanding from that number that you get. When you're doing a passage, you should be focusing on that. So inflation, however, is now less of a concern with subdued core inflation and food prices expected to moderate. अब देखो, this is for the second time that the author says, ये देखो यहाँ पर, growth considerations now outweigh concerns over inflation. Outweigh मतलब ज्यादा भारी हो जाते हैं. तो क्या भारी हो जाता है, किसके ऊपर भारी होता है? ग्रोथ कंसिडरेशंस भारी हो जाता है इन्फ्लेशन की चिंता के ऊपर. तो मतलब इन्फ्लेशन की चिंता कम होती है, इन्फ्लेशन कंसर्न्स आर लो and the growth considerations are high. He said it in the first paragraph. In the second, he repeated that it is now less of a concern with subdued core inflation and food prices expected to moderate. राइट तो मॉडरेट होना सही हो जाएंगे. तो इन्फ्लेशन के बारे में इतनी चिंता नहीं है, ज्यादा चिंता अब हमें ग्रोथ की करनी है. दैट इज द पॉइंट. As per the RBI's latest projections, the consumer price index is projected to come down from 4.8% this year to 4.2% next year. It says that food prices, now again come down will be the word. Food prices should witness softening due to good खरीफ. तो फूड प्राइसेस सॉफन हो जाएंगी, क्यों और कैसे? इन्होंने पहले ही बोला था ना, ये एक्सपेक्टेड टू मॉडरेट है. ठीक है, तो कैसे होगा? तो खरीफ प्रोडक्शन अच्छा हुआ है तो फूड प्राइसेस सही हो जाएंगे थोड़ी सी. ठीक है, और यहाँ पर इसने क्या, सीपीआई जो है, सीपीआई भी कम हो जाएगा. हमने पिछले कुछ दिनों में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और डब्ल्यूपीआई तुम्हें पढ़ने के लिए दिया था. अगर जिसने भी नहीं पढ़ा है तो प्लीज रीड ऑन सीपीआई एंड डब्ल्यूपीआई कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता क्या है, होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, जीडीपी क्या होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है. यू ओनली नीड टू रीड इट, राइट? So, good kharif production, winter easing in vegetable prices and favorable rabi crop prospects. तो रबी क्रॉप्स अच्छे हो जाएंगे. विंटर में इतनी सारी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आ जाते हैं तो इनके प्राइस मॉडरेट हो ही जाते हैं. खरीफ प्रोडक्शन बढ़िया था, रबी प्रोडक्शन और अच्छे होने के चांसेस हैं. तो इन सब की वजह से ये जो है फूड प्राइस इन्फ्लेशन वो मॉडरेट हो जाएगा. तो इसकी चिंता नहीं है. चिंता अभी हमें करनी है तो ग्रोथ की, जो 6.4 6.7 इतना चल रहा है अभी, या इतना प्रोजेक्ट किया गया है. राइट, सो यू गेट द मेन आइडिया ऑफ द ऑथर ऑल्सो, what he is stating, how he is analyzing the decisions taken by the monetary policy committee. Right, now the decision to cut rates comes only days after the central bank announced its plan to inject liquidity into the banking system through open market operations, variable rate repo auctions and dollar rupee buy sell swap auctions. ठीक है, तो इनका काम क्या है? इंजेक्ट लिक्विडिटी. ठीक है, तो ये डिसीजन जो था टू कट रेट्स, ये कब आया? जब सेंट्रल बैंक ने अनाउंस किया कि अब हमें लिक्विडिटी देनी है, मार्केट में लिक्विडिटी होगी, पैसा सर्कुलेशन में होगा, तो जाके ट्रांसैक्शंस होते हैं, ट्रांसैक्शंस होंगे तो जाके हर एक का बिजनेस चलेगा. ठीक है, अगर पैसा नहीं होगा हमारे पास तो फिर हम खरीदेंगे कुछ ज्यादा नहीं, खरीदेंगे नहीं तो वो बिजनेसेस रन नहीं होती हैं फिर. राइट, देन देयर इज अ लैग देयर. सो in his comments, RBI governor said that the central bank would continue to monitor liquidity and financial market predicaments, yani problems, and take appropriate measures to ensure orderly liquidity conditions. तो इसके बाद हमारे पास एक पूरा pointer आ गया that they have to bring liquidity in the market. For that, the RBI has cut the interest rates with 0.25. repo rate वैसी की वैसी है. अब हमें ये समझना पड़ेगा ना, रेपो रेट, इंटरेस्ट रेट, बैंक रेट, एसएलआर, ये होता क्या है. सो एज पर एनालिस्ट, दिस शुड अलाउ फॉर द स्मूथर ट्रांसमिशन ऑफ रेट कट्स इन द मनी मार्केट. ये रहा, तो मनी मार्केट सही तरीके से चलेगा, लिक्विडिटी इंजेक्ट हो जाएगी. ठीक है, तो जिसे ये आरबीआई ये बैंक रिलेटेड है, जिसे इकोनॉमिक्स रिलेटेड आर्टिकल प्रॉब्लम करते हैं, उसे आप एक बार और सुन लेना, ध्यान से सुन लेना कि हमें कैसे पढ़ना है और उसमें से एक्सट्रैक्ट क्या करना है. Right, so it will not be difficult for you now. We have done quite many. MPC's decision to lower rates comes after the government cut personal income taxes in the union budget, a measure that is expected to boost household consumption. अब देखो क्या हो रहा है, उन्होंने इंटरेस्ट रेट्स कम कर लिए, फाइन. गवर्नमेंट ने पर्सनल इनकम टैक्सेस में भी छूट दे दी, ये भी सही है.
अब अगर इंटरेस्ट रेट्स कम हो रहे हैं और टैक्स की छूट मिल गई, मतलब एक मिडिल क्लास पर्सन के पास पैसा रहेगा, परचेसिंग पावर रहेगी, अब वो खरीद सकता है चीजें। जब वो खरीद सकता है चीजें तो इसका मतलब हाउस होल्ड कंजम्पशन इंक्रीज होगा, बूस्ट होगा। हाउस होल्ड कंजम्पशन बूस्ट होगा तो जब हम कुछ खरीदेंगे तो डेफिनेटली द इंडस्ट्री ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग और द थिंग्स दैट वी आर बाइंग, दैट इंडस्ट्री इज गोइंग टू ग्रो, right? So consumption, if the rural and the urban consumption improves, the industries are going to prosper then. And all this will happen when we have the purchasing power in our hand. अदरवाइज अगर फूड प्राइसेस मॉडरेट होती जा रही है, अगर फूड प्राइसेस एकदम महंगी हो जाते हैं अगर फूड, तो फिर एक आम आदमी के पास परचेसिंग पावर कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसे सबसे पहले तो पहले फूड खरीदना पड़ेगा, तो बाकी की चीजों का टाइम टाइम नहीं, पैसा नहीं रहेगा उनके पास, तो दे कैन बाय दोज एक्स्ट्रा थिंग्स देन। तो अगर फूड की प्राइस मॉडरेट हो जाएगी तो बाकी की चीजों पे हम खर्चा कर सकते हैं। अंडरस्टैंड दिस, राइट? तो अब एमपीसी ने क्या किया है, इंटरेस्ट रेट्स उसने कम कर देगी। देखो, ज्यादा पैसे से जमा करके रखना नहीं है, बस खर्चा करना शुरू कर दो, लिक्विडिटी ले आओ मार्केट में। तो मार्केट में लिक्विडिटी लेके आएंगे तो इंडस्ट्रीज चलेंगी, ट्रांसैक्शंस होते हैं, इंडस्ट्रीज चलेंगी, पैसा रहेगा मार्केट में, लिक्विडिटी रहेगी, हाउस होल्ड कंजम्पशन बढ़ेगा। एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड, राइट? प्रोवाइडिंग अ फिलिप टू द ब्रॉडर इकोनॉमी। डेफिनेटली जितने ट्रांसैक्शंस आप करते हो, जितनी चीजें आप खरीदते हो, जितनी चीजें आप सेल करते हो, it is increasing that economy growth, वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। दैट इज हाउ, therefore I said please count, please calculate, check how the GDP is calculated। तो आपका जितना इंडिविजुअल एक्सपेंडिचर होगा, जितना गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेंगी, ठीक है, वो सारी चीजें इंक्लूड होती हैं उसमें, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट्स। क्वेश्चन नाउ इज, टू व्हाट एक्सटेंट कैन द सेंट्रल बैंक ईज द पॉलिसी रेट्स फर्दर टू सपोर्ट ग्रोथ? और कितना कम कर सकते हैं? अभी 2 महीने बाद वापस से उनकी मीटिंग होगी, तो फिर क्या करेंगे? ठीक है। Its inflation projections 4% in the second quarter, 3.8% in the third quarter, and 4.2% in the fourth quarter suggest the space for further easing, कि हाँ थोड़ा सा और वो रिलैक्स हो सकते हैं, थोड़ा सा और ईजिंग ईज कर सकते हैं वो। But the global and domestic environment is challenging, ये रहा। In an uncertain environment, the pressure on the currency is also unlikely to ease. Much will depend on the playing out of the growth inflation dynamic. ग्रोथ कितनी हो रही है, इन्फ्लेशन किस तरीके से चल रहा है, इनके जो डायनेमिक्स हैं आपस में, उस पर डिपेंड करेगा कि आगे हमारे हर क्वार्टर में कितना ग्रोथ हो पा रहा है या इन्फ्लेशन का रेट क्या रहेगा, राइट? So if we understand the main ideas, we've already discussed this. So joining the list means this shows that yes, the RBI is on the same track as the world banks are. World banks with the banks in the world are. It will emerge in the coming weeks. So whatever they have set, whatever they have estimated, whatever they have projected, it remains to be seen कि जो project किया है वो बराबर हो पा रहा है या नहीं। तो फिर अगली कमिटी सिटिंग में वापस वो कुछ और डिसीजन लेंगे या तो उसी डायरेक्शन में चलेंगे। दैट विल डिपेंड ऑन how it is going to grow in the coming weeks. Inflation also, he said that it is less of a concern. So this was a major point that we discussed also. And another point was to inject liquidity into the banking system. ये करना है उन्हें। और फिर it is still, the environment is still challenging, domestic environment अभी भी challenging है, and it is going to depend on the playing out of the growth inflation dynamic कि ये कैसे चलेगा, क्योंकि uncertainty तो है। uncertainty है तो global and domestic environment challenging है। क्यों? क्योंकि uncertainty है। uncertainty है तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे, इस पे डिपेंड करेगा ग्रोथ इन्फ्लेशन डायनेमिक्स पर। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। So RBI lowers interest rates as growth considerations dominate. So growth considerations dominate मतलब इन्फ्लेशन के कंसर्न्स कम है। डोमिनेट से ही समझ में आ जाएगा कि प्रेफरेंस किसको दी गई है, ग्रोथ कंसिडरेशंस को। किसे कम दी गई है? तो इन्फ्लेशन को। ठीक है, क्योंकि इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं वो अपने आप सेटल हो जाएगा, सही हो जाएगा। Understanding the vocab part, what I've done is I've marked a few words. Now today also write down these words please.
बेसिस पॉइंट्स हमें समझ में आता है कि वो 100 बेसिस पॉइंट्स के हिसाब से 1% बनता है, तो 0.25 हो जाता है उसके हिसाब से। रेपो रेट क्या होता है? न्यूट्रल पॉलिसी, रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी क्या थी? न्यूट्रल यानी कुछ नहीं करना है, इंडिफरेंट वाला। रिस्ट्रिक्टिव यानी कहीं पे कंट्रोल करना है, कहीं पे रोक लगाना है। तो एमपीसी जब मिलती है, जब वो रिव्यू करती है पूरी चीजों को, जब वो अपना डिसीजन सुनाती है, तो किस तरीके से कैसी पॉलिसी वो अपनाती है, दैट इज द पॉइंट। वेदर इट स्टेज comes up with a status quo, or it comes up with increasing the restrictions, or what does it do? Does it like be a little more lenient? तो वो रहती है हमारे पास। तो किस तरीके से इनके डिसीजंस लिए गए हैं, उस हिसाब से उनकी उनकी किस पॉलिसी को वो फॉलो करते हैं, दैट इज द पॉइंट। द न्यूट्रल पॉलिसी स्टैंड्स और रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी। देन वी हैव रोबस्ट, एंड रोबस्ट मींस स्ट्रॉन्ग, एनर्जिक, हेल्थी। ठीक है। कोर इन्फ्लेशन, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है सेट। ठीक है। कोर इन्फ्लेशन सेक्टर्स होते हैं, आप इसके ऊपर एक बार और पढ़ लेना, बेसिक जो रहते हैं वो। एंड दिस इज समथिंग दैट आई हैव टेकन इन द प्रीवियस वीक्स आल्सो। Open market operations में you read on this again, write down this word, open market operations क्या होते हैं, कैसे होते हैं। तो इन्होंने एक बैंकिंग सिस्टम कैसे किया, मतलब they injected liquidity through the open market operations, right? So there are multiple things included there. जब हम कभी इकोनॉमी के कभी पूरे बैंकिंग पे सपोज आई टेक अ सेशन देयर, देन आई विल बी एक्सप्लेनिंग। अभी आप इसे लिख लेंगे और इस पे आप रीडिंग करेंगे। ठीक है। ये रहे, व्हाट आई एम गिविंग यू नाउ इज द रेट्स, दीज आर द लेटेस्ट रेट्स दैट आई हैव टेकन टुडे। तो बैंक रेट इतना है, रेपो रेट 6.25 थी, रिवर्स रेपो रेट 5.75 है, सीआरआर 4 था, एसएलआर ये है। ठीक है। हाँ, आई हैव कम अप विद द डेफिनेशन आल्सो, ये भी आपको दे दिया आज। तो बैंक रेट है with a rate of interest charged by the Reserve Bank of India from banks and other financial institutions for offering loans and advances। ठीक है। अब ऐसे बस शॉर्ट में लिख लेना आप बिल्कुल, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रेडीमेड आपने लिख लिया, बस आप इसके साथ पढ़ना भी कुछ और। बेस रेट इज, इट इज द मिनिमम रेट सेट बाय द आरबीआई, सो नो लेंडर कैन लेंड मनी टू कस्टमर्स बिलो द एग्जिस्टिंग बेस रेट। तो इतना तो देना ही पड़ेगा, इससे कम में नहीं जाएगा। ठीक है। तो बाकी के बैंक्स और लेंडर्स दे वुड डिटरमिन द इंटरेस्ट रेट्स फॉर द वेरियस लोन्स बेस्ड ऑन द एग्जिस्टिंग बेस रेट। तो सीआरआर वी हैव डन दिस, मतलब आ जाता है, कैश रिजर्व रेशियो होता है, तो मिनिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट एज रिजर्व्स विद द सेंट्रल बैंक, जो नहीं रखना पड़ता है। ठीक है। अब कैसे भी रहेंगे, सो इट इज अ कैश रिजर्व रेशियो, फुल फॉर्म भी आ गया है आपके पास, रेट भी आ गया है। ठीक है। और एसएलआर में, एसएलआर बिकम्स द गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट, वाइल लिक्विडिटी कवरेज रेशियो होता है, एलसीआर होता है, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होता है कि 30 डेज तक आपके पास नेट कैश रहना ही चाहिए, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। और एसएलआर जो था हमारे पास यहाँ पर 20.75, ये हमारी ही कंट्री का है। ठीक है। एलसीआर एक अलग रेट होगा, जो कि इंटरनेशनल बैंकिंग स्टैंडर्ड्स हो जाएंगे। ठीक है। So that's all for today. More to read me. What I've given you is a shallow cut. Again, this is related to the Monetary Policy Committee decision only. And may I introduce you to tariff? ये business standard का एक article है, बढ़िया तरीके से, मतलब आप इसका heading भी देख सकते हो, तो ये tariffs के बारे में हमें कुछ बताएगा। ठीक है। So जैसे tariffs में अभी problem हो रही है, economics में problem होती है, kindly read it. एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉट पर्सनल मॉरालिटी मस्ट गाइड कोर्ट्स, ये हिंदुस्तान टाइम्स का एक आर्टिकल पढ़ा अभी। तो मतलब इट इज बिकॉज एज से इट इज रिलेटेड टू योर फील्ड, इट इज रिलेटेड टू द कोर्ट, सो पढ़ना बनता है। ठीक है। तो ये 2-3 आर्टिकल्स हो जाएंगे आपके लिए आज के लिए, तो मिनिमम इतना तो आप पढ़ ही लो, मतलब अगेन व्हाट आई सजेस्ट, अदरवाइज वी सजेस्ट क्वाइट मेनी आर्टिकल्स, बट read this much at least. And that's all for today. So thank you. Stay logical and stay positive always. Be logical and be positive always. Thank you. See you.